Hello, everyone. Hello. I have joined just now. So she is a cultural convener, Sonia Sareen. Oh, welcome. And, Sonia, Nice to meet you. Nice to Thank see you. you. Thank you. सोनिया भी आ सकती Thank है ना इसमें। हाँ जी आंटी। सोनिया, Hi everyone. Hi Meenakshi. hi Anupma, how are you? I'm fine. Great initiative. Wonderful. Thanks to all of you. Most welcome. Meenakshi, we are waiting for another few minutes. No, we I think just start. starting 2 minutes now. While we are waiting for the meeting to start, may I suggest that any questions that members may have while seeing the session, please either put them in the chat or ask them after Mrs. Bansal has finished with the presentation. Meenakshi ji could take it up after the presentation is over. Yeah. Okay. That would be nice and manageable. Sure. I think Meenakshi आप शुरू कर सकते हैं. Okay. So hello everyone. कर दो please. सिवाय में. Hello everyone. The Florida needs no action. But just to revise, it was started in 1993 by a group of like-minded people. And we have Aruna ji here, who was one of the pioneers and strength of this society. इनकी क्रिएशंस देखकर तो हमें लगने लगता है कि हम मीनाक्षी तो and since FSN has emerged as the most active horticulture society in Noida, they keep organizing regular meetings, now the Zoom sessions for the last 1 year, and the highlight is show held in Noida Stadium every year. Vasant Utsav, which of course was a virtual one, as we already know. They have more than 500 members now, which includes schools, institutions, industries, and their contribution to make Noida clean and green has been indeed immense. So today, on behalf of RW15A, I welcome Team FSN, all the organizers, especially Mr. Vivek Kumar for hosting this session, Deepa ji, Manju ji, who are pillars of this. And whenever I relate to FSN, I think about Deepa ji and Manju ji. Their passion and dedication is just beyond par excellence. So now I also welcome here Mrs. Indu Bansal, the day, who's an expert in home composting. And today she is going to give some excellent tips on how to do home composting right inside your own house. So over to Indu ji now. Welcome Indu ji. Thank you so much. I'm really honored to be here today और मेरे को बहुत इस बात की खुशी है कि आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया और दिस इज अ स्टेप कि हम अपना एनवायरनमेंट अच्छा कर सकें और आसपास का वातावरण और ग्रीनरी कर सकें। हम बोल ही सकते हैं वैसे ऐसे। आवाज आ रही है मेरी? Am I audible? हाँ, आपकी आवाज तो आ रही है हमें। हाँ जी, तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आई थिंक अगर ऐसा हमें चारों तरफ दिखाई दे अपना वातावरण तो बहुत ही अच्छा लगेगा। पर अभी जो करंट सिनारियो है उसमें क्या है कि चारों तरफ हमारे गार्बेज के बड़े बड़े दिखाई देते हैं हमें, जगह जगह बहुत कूड़ा पड़ा होता है और गाजीपुर और बिलसवा के बारे में सबको पता है कि वहाँ कितने बड़े बड़े लैंडफिल्स हैं, कभी उसमें आग लग जाती है, कभी कुछ प्रॉब्लम होती है। सो अवॉइड ऑल दिस। अगर हम अपने घरों में ही कुछ अपने जो निकलने वाला ग्रीन वेस्ट है उसको हम मैनेज कर लेते हैं तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। उसके लिए गवर्नमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो कि हमारे घरों से निकलता हुआ कूड़ा जब लैंडफिल तक जाता है। आजकल गवर्नमेंट कितना उसके लिए पेंस ले रही है, सबको बोल रही है अपना सेग्रीगेट करके दो कूड़ा, फिर भी बहुत लोग नहीं अभी भी समझ रहे हैं इस बात को।
हमें ये बात अच्छे से समझनी चाहिए कि जितना कूड़ा हमारे घर से निकलता है, जो भी हम देते हैं कूड़े की ट्रॉलीज में, उसमें से 50% हमारा ग्रीन वेस्ट या वेट वेस्ट होता है। और उसके लिए जो हमारे घर से निकलकर जो वो लैंडफिल तक पहुंचता है, उसमें जितना हमारा ट्रकों का पोल्यूशन होता है, मैन पावर लगता है, या जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है, वो कहीं ना कहीं हम ही पे कर रहे हैं। तो वी शुड ट्राई एंड रिड्यूस ऑल दिस। अगर हम अपने घरों में उसको सेग्रीगेट करके उसको रिड्यूस कर पाएंगे, तो ये हमारी तरफ से एक बहुत अच्छा पहल होगा। एक इट विल बी फर्स्ट स्टेप फ्रॉम आवर साइड कि हम अपनी सोसाइटी को ग्रीन करने में एक कुछ योगदान कर रहे हैं। तो जो भी हमारे घर से ग्रीन वेस्ट निकलता है, उसका हम 3 तरह से यूज करके उसको हम अपने घरों में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहें तो उसको लैंडफिल तक ना पहुंचने दें। क्योंकि जो भी हम सामान एज अ गार्बेज निकालते हैं रोज हमारे घर से, उसमें से जो ग्रीन वेस्ट होता है वो बिल्कुल भी गार्बेज नहीं होता, पर वो जो बाकी चीजों के साथ मिल जाता है, जैसे अगर हम आप अपना घर का ग्रीन वेस्ट, फल सब्जी के छिलके एक न्यूज़पेपर के साथ या किसी और प्लास्टिक के साथ डंप यार्ड तक पहुंचाते हैं, तो वो भी बेकार हो जाता है, वो भी रिसाइकिल नहीं हो पाता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसको हम या तो होम कंपोस्ट बनाकर यूज करें, या उसका बायो एंजाइम बनाएं, जो कि एक मैजिकल लिक्विड है। होम कंपोस्ट तो सभी जानते हैं कि हमारे पेड़ पौधों के लिए कितना अच्छा है, या फिर हम उसको कभी कभी स्लरी के जैसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये बाय एंड लार्ज 3 तरीके हैं जिससे हम अपने घर के ग्रीन वेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने ही घरों में, अपने पेड़ पौधों के लिए या अपने सराउंडिंग्स के लिए। इसमें से सबसे ज्यादा जो कि बड़ा चंक हम यूज कर सकते हैं ग्रीन वेस्ट का, वो होम कंपोस्टिंग में ही यूज कर सकते हैं। अगर हम उसको कंपोस्ट बिन में डालें और उसको हम कन्वर्ट करें ब्लैक गोल्ड में, जो कि बनने के बाद बहुत अच्छी खाद तैयार हो जाती है, तो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू सराउंडिंग। अब क्वेश्चन ये है कि हमें कंपोस्टिंग क्यों करनी चाहिए। कुछ लोगों को जो नहीं अभी तक कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्वेश्चन जरूर होगा कि हम कंपोस्टिंग क्यों करें। पंखा चला। इससे एक तो जो भी हमारे घर से निकलकर कूड़ा लैंडफिल तक जाता है, वो उसका लोड काफी कम हो जाएगा। जो ग्रीन हाउस से गैसेस रिलीज होती है वो कम हो जाएंगी, हमारी चारों तरफ की सराउंडिंग्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। और जब ये कंपोस्ट तैयार करके हम अपने पेड़ पौधों में या हमारे सोसाइटीज के लॉन्स में डालेंगे, तो दे विल बी थ्राइविंग, बहुत अच्छी तरह से वो ग्रो करेंगे, क्योंकि इससे सॉइल में अच्छे से ह्यूमस हो जाती है, और इसको हम मल्च के जैसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब फायदे हैं हमें कि हमें कंपोस्टिंग क्यों करनी चाहिए। इन सब वजह से हमें कंपोस्टिंग ज़रूर करनी चाहिए। पर जब भी हम कंपोस्टिंग करते हैं, तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप होता है कि हमें सेग्रीगेट करना चाहिए अपने कंपोस्ट को। जैसे कि अब आजकल जो भी कूड़ा लेने आता है, वो भी अनाउंस करता रहता है कि अपना कूड़ा आप सेग्रीगेट करके डालिए। अगर आप अपने ग्रीन वेस्ट में, जिसमें कि हम जनरली अपने फल सब्जियों के छिलके जो हमारे किचन से निकलते हैं, हमारे गार्डन का ग्रीन वेस्ट, ऐसे पेड़ पौधे या कटिंग्स जो कि हमारे अब सीजन खत्म हो गया है, तो उनको हम जब हटाते हैं, तो उनको कूड़े में न डालकर उनको चॉप करके अगर हम अपने ही एंड में उसको कंपोस्ट में डाल देते हैं, या फिर हमारे घर से निकलने वाले पूजा के फूल, जो कि हम बहुत आस्था से भगवान जी को चढ़ाते हैं, पर जब वो हम अगले दिन हटाते हैं तो समझ में नहीं आता हम उनको क्या करें। क्योंकि अगर हम उसको कूड़े में डालते हैं, तभी भी मन में कहीं ना कहीं अंदर एक तकलीफ होती है कि पूजा के फूल कूड़े में ना डालें। तो उसको अगर हम अपने कंपोस्ट में डालते हैं या उसको हम एंजाइम के जैसे यूज करते हैं, तो वो बहुत एक उसका अच्छा उपयोग हो जाता है। अब बाकी बचा जो वेस्ट है हमारे घर से निकलता है, उसमें जनरली क्या होता है, न्यूज़पेपर्स होते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, प्लास्टिक रैपर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है। ये सब चीज़ काफ़ी हद तक हम लोग अपने ही घरों में कबाड़ियों को देकर उसको कहीं ना कहीं रिसाइकल तक पहुंचा देते हैं। तो अगर हम देखें तो ये सब अगर हम करें, तो हमारे घर से निकलने वाला कूड़ा काफ़ी कम हो जाएगा। अगर हमने उसको सेग्रीगेट कर लिया, तो एक हद तक हम उसको काफ़ी हद तक अपने में ही कंज्यूम कर लेते हैं। अब जब हम कंपोस्टिंग की बात करते हैं, तो कंपोस्टिंग हम 2 तरह से कर सकते हैं, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। कंपोस्टिंग जब भी आप करने की सोचें, दोनों ही तरीके, कंपोस्टिंग का सब तरीका अच्छा होता है, कुछ अच्छा होता है, कुछ बहुत अच्छा होता है।
ऐसा कुछ नहीं कि कोई भी कंपोस्टिंग अगर आप करेंगे तो वो खराब होगी, कंपोस्ट तो होगा ही होगा। पर अगर आप एरोबिक तरीके से करते हैं जो कि अर्दन पॉट में करते हैं, तो उसमें आई फील, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो उसमें चूंकि एयर सर्कुलेशन अच्छे से होती है, इसलिए उसकी खाद ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से बनती है। पर ये बहुत एक अपनी पर्सनल चॉइस है, आप किसी चीज़ को भी खराब नहीं बोल सकते। अगर आप एनारोबिक कर सकते हैं या आपका घर का जो एटमॉस्फेयर है या आपकी जो कंडीशंस अलाउ आपको करती हैं, उस ढंग से आप अपना मेथड चुनिए। एरोबिक भी अच्छा है, एनारोबिक भी बहुत अच्छा है। जो ध्यान में रखने वाली बात है कंपोस्टिंग शुरू करने के पहले कि आपके पास कितनी जगह है, आप कहाँ रह रहे हैं। क्या आपके पास छत है जहाँ पर आप रख सकते हैं, आपके पास बैल्कनी है, आपके पास लॉन है, या आप एक हाई राइज बिल्डिंग में कम्युनिटी में रहते हैं। तीनों के लिए आपको अलग अलग चीज़ें देखनी चाहिए। अगर आप छोटी अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो जिस तरह से आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको हम खंबा कहते हैं। ये टेरिकोटा का भी आता है और ये प्लास्टिक का भी है जो एनारोबिक वाला है। ये 3 लेयर्स में रहते हैं। जैसे एक लेयर आपने ऊपर वाली भरनी शुरू की, जब धीरे धीरे वो भर जाएगी तो आप सबसे ऊपर वाली नीचे कर दीजिए और फिर सेकंड वाली में भरिए। जब वो भी भर जाए तो आप थर्ड वाली ऊपर कर लीजिए। जब तक थर्ड वाला भरेगा तब तक फर्स्ट वाला आपका तकरीबन तैयार हो जाएगा। प्लास्टिक वाले भी अब इस तरह के मार्केट में आ गए हैं। इसमें रखने की बहुत जगह नहीं लगती। ये तकरीबन 12 बाई 15 या 12 बाई 18 का आता है प्लास्टिक वाला, और अर्दन पॉट वाला तो 12 बाई 12 के डायमीटर में ही तकरीबन रहता है। तो आप इसको अपने किचन के बाहर या अपने जहाँ भी आप वॉशिंग एरिया है वहाँ पर बहुत इजीली इसको आप एडजस्ट कर पाते हैं। पर जो लोग बड़े अपार्टमेंट्स में रहते हैं और अपने घर में नहीं करना चाहते, तो जो थर्ड आप फोटो देख पा रहे हैं, उसमें कम्युनिटी कंपोस्टिंग की एक रैक्स टाइप की रहती हैं। ये लॉकेबल रहती हैं। इसमें कई लोग कर रहे हैं कम्युनिटीज़ में अपने, कि उसमें सब लोग एक टाइम फिक्स करके अपना कूड़ा वहाँ पर एक आदमी जिसको भी हायर करते हैं वो पहुँचाता है, कोई उसको मॉनिटर करता है और डालने के बाद आप उसको लॉक कर सकते हैं। आप गड्ढा बनाकर भी उसको कर सकते हैं, पर उसमें 2-3 चैलेंजेस आते हैं। एक तो कोई भी कभी भी उसमें कूड़ा डाल देता है क्योंकि वो लॉकेबल नहीं होता। उसमें जितना ग्रीन वेस्ट डलता है उसमें उतना ही बाकी लोग अनवांटेड मटेरियल भी डाल देते हैं। प्लस जो वहाँ आसपास कैटल होते हैं, डॉग्स होते हैं, वो भी उसको काफ़ी फैलाते हैं, तो वो काफ़ी एट टाइम्स न्यूसेंस हो जाता है। तो अगर आपका बड़ा लॉन है या आप किसी बड़े एरिया में करना चाहते हैं तो आई सजेस्ट कि इस तरह का आप अगर ये एक कंटेनर खरीद लें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है तो आप 4-5 करिए, जब तक एक भरेगा तब तक दूसरा तीसरा चौथा आप करेंगे तो फर्स्ट वाला आपका रेडी हो जाएगा। तो दीज आर दी फ्यू ऑप्शंस। और ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आपको खरीद के ही कुछ करना है। आप पुराने मटके जो आपने अभी पानी का यूज़ किया है, अब गर्मियों के बाद जब हम उसको हटाते हैं तो आप उसमें होल करके उसको भी यूज़ कर सकते हैं। पुरानी बकेट्स, अपने वाटर टैंक्स, बाथ टब्स, कुछ भी आप कोई भी चीज़ को एज अ बिन यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अप टू योर चॉइस कि आपको क्या यूज़ करना है। आपको अपने डिस्कार्ड वाला यूज़ करना है या आपको साफ सुथरा दिखना है तो आप एक मार्केट से लेके बना सकते हैं। उसमें कोई भी हिंड्रेंस नहीं है। बनने का तरीका सबका सेम ही होगा और वो बन के एंड प्रोडक्ट सबका सेम ही आएगा। इट्स ओनली फॉर योर कन्वीनियंस कि आप उसको कैसे चुनते हैं और कैसा चाहते हैं। अब ये वो साइट है जो कि हमारे घरों से कूड़ा निकलता है। कहीं भी एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि जरा सा कहीं कूड़े का अगर ढेर होता है तो सब लोग आकर उसमें कूड़ा डालने लग जाते हैं और धीरे धीरे वो एक बहुत बड़ा हिट बन जाता है। स्ट्रे डॉग्स, गाय भैंस आकर सब उसमें से अपने लिए खाना चुनते हैं। कई बार आप रैग पिकर्स को भी देखा होगा जो अपनी अर्निंग के लिए उसमें से कुछ कुछ खोजते रहते हैं। ये बात हमें ज़रूर ध्यान देनी चाहिए कि जो भी ग्रीन मैटर है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, वो कंपोस्ट होगा ही होगा। अब ये हमारे ऊपर है कि आप उसको सड़ाने चाहते हैं, आप उसको मतलब ऐसा माहौल देना चाहते हैं कि वो यूजेबल ना हो, या फिर उसको आप कंपोस्ट करके अपने लिए अपनी ग्रीनरी के लिए यूज़ करना चाहते हैं। जैसे फेमस सेइंग है कि हर गीली चीज, हर हरी चीज का धर्म है सड़ना, और हमारा कर्म होना चाहिए उसको सही तरीके से यूज करना।
अब कंपोस्टिंग में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको उसमें 2 लेयर्स लगानी होती हैं, एक ग्रीन लेयर एक ब्राउन लेयर। बस इसी में थोड़ा सा एक आर्ट है, अगर आप उसको एक बार समझ लेते हैं तो कंपोस्टिंग इज वेरी वेरी इजी। इसमें हम ग्रीन लेयर जो प्रोवाइड करते हैं उसमें मैंने जैसे इसमें आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आपके फल सब्जियों के छिलके हैं, कुछ ऐसे भी फल सब्जी जो हम नहीं यूज कर रहे हैं, ओवर राइप हो गए हैं या नहीं कंज्यूम हुए, वो भी डाल सकते हैं। कॉफी ग्राउंड्स, टी बैग्स, ग्रास क्लिपिंग्स, बड़े जो लॉन्स वगैरह में होते हैं उसमें आप डाल सकते हैं, होम कंपोस्टिंग के लिए यूज नहीं करें। फूल आपके बुकेज अगर आ रहे हैं वो सब आप डाल सकते हैं, प्लांट्स क्लिपिंग्स डाल सकते हैं, काउ डंग डाल सकते हैं, भुट्टे के छिलके, भुट्टे के कप्स, ये सब डाल सकते हैं। ये सब हमारे ग्रीन वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। मंदिरों से फूल जो बहुत निकलते हैं, मैं उनको भी काफ़ी कलेक्ट करके उनको भी ग्रीन लेयर की जैसे यूज़ करती हूँ। फिर ब्राउन लेयर्स के लिए आप ड्राइड लीव्स यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग एंड ईजिली अवेलेबल। नोएडा में इतने पेड़ हैं और पतझड़ के टाइम हमारे यहाँ साल में 2 बार पतझड़ होता है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैग्स में भर के रख सकते हैं। अगर आप कंपोस्टिंग कर रहे हैं तो ये आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आपके पास ड्राई लीव्स जरूर होना चाहिए। उसके बाद आप स्ट्रॉज, हेज, वुड क्लिपिंग, ट्विग्स, ब्राउन पेपर, नट शेल्स, कॉर्न स्टिक्स, जो कुछ आपके इसमें दिख रहा है आप सब कुछ यूज कर सकते हैं। अगर आप अभी लॉकडाउन के टाइम हम काफ़ी सामान ऑनलाइन या मंगा रहे हैं तो काफ़ी कार्टन्स भी हमारे पास कार्डबोर्ड के इकट्ठे हो जाते हैं, उनको भी आप छोटे छोटे टुकड़े करके उनको भी एज अ ब्राउन लेयर के यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने इसका ठीक से एक लगाया, ब्राउन लेयर हमें कार्बन देता है और ग्रीन लेयर हमें नाइट्रोजन देता है, ये दोनों ही चीज़ रिक्वायर्ड होती है हमारी कंपोस्ट को बनने के लिए। पर जितना हम ब्राउन लेयर और ग्रीन लेयर का ठीक से कॉम्बिनेशन बनाकर उसको अपने बिन्स में डालेंगे तो हमारी कंपोस्ट अच्छी बनेगी। अब सवाल ये है कि हमें कितना रेशियो में ब्राउन एंड ग्रीन डालना चाहिए। अगर हम ग्रीन लेयर एक पोर्शन डाल रहे हैं तो ब्राउन लेयर जनरली उसका डबल होना चाहिए। देयर इज नो थंब रूल इन कंपोस्टिंग की ऐसा ही होना चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी थिंग्स। अगर आपने बहुत ज़्यादा ग्रीन लेयर डाल दिया तो आपका बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होगा तो स्मेली हो जाएगा, बहुत वाटरी हो जाएगा, तो आपका ठीक रेशियो नहीं बैठेगा। तो कई लोगों को जैसे शिकायत होती है हमारा बहुत गीला हो गया था, तो उसमें आपकी ड्राई वेस्ट की कमी रह गई है, आपका उसमें कार्बन कम हो गया है। तो अगर आप दोनों का बैलेंस ठीक रखेंगे तो आपका कंपोस्ट ठीक बनेगा। लेकिन अगर आप अर्दन पॉट में बना रहे हैं तो 1:2 का रेशियो तकरीबन ठीक रहता है। प्लास्टिक वाले में आप 1:3 का रेशियो भी रख सकते हैं। जैसे अगर आपने एक कोई भी कंटेनर छिलके का लिया है तो उससे 3 कंटेनर्स आप ग्रीन की जगह ब्राउन वेस्ट का लीजिए, तो आपका, क्योंकि जो मटका होता है उसमें थोड़ा सा एयर सर्कुलेशन होता रहता है तो अंदर से वो अपने आप काफ़ी मॉइस्चर सोख लेता है। लेकिन प्लास्टिक वाले में आपका मॉइस्चर अंदर ही रहेगा, इसलिए उसमें आपको ब्राउन वेस्ट ज़्यादा ऐड करना चाहिए। और इस पे भी डिपेंड करता है कि आप जो ग्रीन वेस्ट ऐड कर रहे हैं उसमें कितना वाटर कंटेंट है। जैसे जब हमारे घर में तरबूज या खरबूजे की काफ़ी कंजम्पशन होती है तो उसके जब छिलके जाते हैं कंपोस्ट में तो मैं उस टाइम ब्राउन वेस्ट ज़्यादा ऐड करती हूँ, क्योंकि उसका जो छिलका है उसमें काफ़ी वाटर कंटेंट रहता है, तो वो ज़्यादा ड्राई वेस्ट मांगता है उस टाइम आपका कंपोस्ट। अगर आप काफ़ी सूखी चीज़ डाल रहे हैं, जैसे अभी लीची हम यूज़ कर रहे हैं तो लीची के छिलके में बिल्कुल भी वाटर कंटेंट नहीं रहता या बहुत कम रहता है, तो उसमें आप अगर थोड़ा कम भी डालें तो भी चलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो आप ग्रीन वेस्ट डाल रहे हैं, जो लेयर आप ग्रीन वेस्ट की लगा रहे हैं, उसमें वाटर कंटेंट कितना है, अकॉर्डिंगली आप अपना ब्राउन वेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब कंपोस्टिंग में अगर हम ये ध्यान रखें कि क्या क्या चीज़ हमें नहीं डालनी है, तो उसमें आ जाता है, अगर आप अपार्टमेंट में है, खुली एरिया में नहीं कर रहे हैं, तो कुछ भी आप मीट, फिश, बोन्स, मिल्क प्रोडक्ट और कुक फूड न डालें। ऐसा नहीं है कि वो नहीं गलेंगे, वो भी कंपोस्ट होंगे, पर एक तो उनको कंपोस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा और वो थोड़ा स्मेल क्रिएट करते हैं। तो अगर आप इनक्लोज्ड एरिया में कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को डालने से बचें। ओपन एरिया में आप आराम से डाल सकते हैं। अगर आपका बिन
छत पे रखा है या बैल्कनी में है जहाँ से एयर सर्कुलेट हो रही है, तो उन सब जगह आप ये सब डाल सकते हैं। पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल अपने कंपोस्ट बिन में नहीं डालनी चाहिए। उसमें सबसे नंबर 1 पोजीशन पे आता है आपके जो भी आपने प्लांट्स की क्लिपिंग वगैरह है जो कि किसी डिजीज्ड है प्लांट, वो उसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे। अगर वो आपने कंपोस्ट बिन में डाले तो उसके जो डिजीज़ है वो उसमें कंपोस्ट में भी रहेगा, और जब वो कंपोस्ट आप अपने प्लांट्स में डालेंगे, अपनी क्यारियों में डालेंगे, गमलों में डालेंगे, तो वो उसमें भी आने के चांसेस रहेंगे। तो उन सब ऐसे डिजीज प्लांट की कटिंग को या उन प्लांट्स को आपको एक कहीं दूर जाकर बरी करना चाहिए, उसको आपको इनको बिल्कुल उसमें नहीं डालना चाहिए। कुछ भी ग्लॉसी या लेमिनेटेड पेपर्स नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो आपके इस प्रोसेस को डिले करेगा और ठीक से होने नहीं देगा। तो अगर आप कोई ऐसा कार्डबोर्ड डाल रहे हैं जिस पे फिल्म लगेगी है, तो उसको उतार कर फिर आप उसको पीसेस करके डालिए। कोई भी हार्श केमिकल नहीं डालेंगे, कुछ भी शार्प चीज़ नहीं डालिए, कोई पॉइंटेड नेल्स या आपके कार्डबोर्ड में अगर स्टेपल पिन्स हैं तो वो सब भी निकालिए, क्योंकि जब आप कंपोस्ट कभी हिलाएंगे या छानेंगे तो उससे आपके हाथ में चोट लग सकती है। किसी भी तरह का प्लास्टिक वगैरह भी आप उसमें नहीं डालेंगे। कई लोग करते हैं डायपर्स वगैरह डाल देते हैं। आई थिंक वी शुड अवॉइड ऑल दिस। कुछ चीज़ें ऐसी हैं अगर हम अपने कंपोस्ट में डालते हैं तो हमारा ये प्रोसेस एक्सेलरेट हो जाता है। जैसे जब आप अपना कंपोस्ट के लेयर्स लगाते हैं तो उसमें अगर गार्डन सॉइल हर लेयर में थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल भी करेंगे तो वो प्रोसेस फास्ट हो जाता है, क्योंकि सॉइल में इटसेल्फ बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमारे इस प्रोसेस को एक्टिवेट करते हैं। इन बिटवीन 2-3 लेयर लगाने के बाद, शुरू से तो नहीं, पर अगर आपका मटका आधा भर गया है या आपका कंटेनर आधा भर गया है तो आप उसमें बीच बीच में सार कर्ड डाल सकते हैं, गुड़ का पानी, थोड़ा सा गुड़ लिक्विड घोल कर थोड़ा सा जैसे स्प्रिंकल करते जाइए। कभी कभी काऊ डंक डाल सकते हैं घोलकर पानी में, काऊ यूरिन डाल सकते हैं। अगर आप घर में वेस्ट डिकम्पोजर यूज़ कर रहे हैं, गौ कृपा अमृतम यूज़ कर रहे हैं, जीवामृत यूज़ कर रहे हैं, बायो एंजाइम यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब आपके लिक्विड फर्टिलाइज़र है। ये भी आपके कंपोस्टिंग के प्रोसेस को इन्हेंस करते हैं और उसको जल्दी तैयार होने में मदद करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आज आपके पास बहुत सारा केले का छिलका हो गया, तो उसको भी अगर आप मिक्सी में चर्न करके थोड़ा सा पानी में घोल के उसको डालेंगे तो वो भी आपके इस प्रोसेस को इन्हेंस करता है और आपके खाद में भी एक ये सभी चीज़ वैल्यू एडिशन करते हैं, आपकी खाद को और इनरिच करेंगे। हींग वाटर आप डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपकी खाद जो तैयार होगी वो थोड़ी जल्दी तैयार होगी और ज़्यादा अच्छी तैयार होगी। इसके अलावा जो भी आप ड्राई वेस्ट में जब पत्ते यूज़ करते हैं तो कोशिश करिए कि जितने ज़्यादा तरीके के पत्ते डाल सकते हैं उतने ज़्यादा तरीके के डालिए, एक ही तरीके का पत्ता ना डालें। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो इट्स ओके कि आप ठीक है डालिए, पर जब आप पत्ते कलेक्ट करें तो आप कोशिश करिए कि आपके पत्तों में सभी तरह के पत्ते रहें, ड्राई लीव्स, क्योंकि हर पत्तों में अपने अपने गुण हैं। जैसे नीम का पत्ता अगर पेस्टिसाइड रिपेलेंट करता है तो अर्जुन का पत्ते में और कोई खासियत है, हर श्रृंगार के पत्ते में और खासियत है। तो सभी तरह का करिए, और जितनी तरह के आप अपने ड्राई वेस्ट डालेंगे अपने ग्रीन वेस्ट के साथ, ग्रीन वेस्ट में तो हम जो कुछ खा रहे हैं वो सब जाएगा ही जाएगा, तो सब वैरायटी उसमें आएगी। पर ब्राउन वेस्ट में जितनी तरह की हम उसको वेरिएशन दे सकते हैं हमारी खाद उतनी अच्छी होगी। अगर आपके पास बिल्कुल भी कोई ऑप्शन नहीं है कि आप अपने पौधे को ग्रीन ड्राई लीव्स दे सकते हैं, तो आपके लिए सबसे इजी है कि आप एक कोकोपीट का ब्रिक धोकर सुखाकर तैयार करके रखें, कि आपका जब भी ड्राई वेस्ट के लिए कोई चीज़ आपको नहीं मिल रहा तो कम से कम वो एक हैंडी है, आप उसको आराम से डाल सकते हैं। उसमें स्मेल भी नहीं होगी, वो काफ़ी वाटर भी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये आपको इस तरह से आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका कैसा है अंदर का एटमॉस्फेयर, आपको ध्यान रखना चाहिए। जो भी चीज़ें मैंने अभी बताई हैं आपको, उन सबको मैं एक छोटे से वीडियो में आपको दिखाना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा आपको और ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे करना चाहिए। मैं अर्दन पॉट में करके दिखा रही हूँ आपको। अभी मैंने इसको ईंटों के ऊपर रखा है, आप चाहें तो इसके लिए एक छोटा प्लेट भी रख सकते हैं नीचे मिट्टी का, तो जो उसमें से कभी कभी पानी निकलता है जिसे हम स्लरी कहते हैं,
वो भी आपका लीचेट कहते हैं या स्लरी कहते हैं, वो आप कलेक्ट करके अपने पौधों में डाल सकते हैं। आई जस्ट ऑन द वीडियो, नहीं चल रहा तो मैं उसको नहीं, को बोलूं मैंने भेजा है उसको। नहीं ये वाला नहीं है। Indiji, do you want Vivek to try to share that? हाँ विवेक जी आप प्लीज चला दीजिए ये वाला। Yeah, let me try. हो गया, शायद मेरा हो गया है। आज मैं कंपोस्टिंग के लिए एक नया मटका शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले इसमें मैंने 3 ईंटें लगा दी ऐसे ट्रायंगल करके, और उसके बाद ये छेद किया हुआ मटका मैंने इसमें रख दिया है। मटके में नीचे एक बड़ा सुराख है जैसा कि आप देख सकते हैं, और उसके बाद मैंने मटका इस पे रख दिया है जिससे मटका हिलेगा नहीं। अब मैंने कार्डबोर्ड के पीसेस जो फाड़ के रखे हुए हैं सबसे नीचे वो डालूंगी, क्योंकि जो सब्जियों के छिलकों का पानी निकलेगा वो ये सोख देंगे, और मेरा लीचेट कम निकलेगा। अगर लीचेट कम निकलेगा बाहर तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं सब्जियों के वो इसी में रहेंगे, देखिए बाहर नहीं निकलेंगे, तो मेरी कंपोस्ट ज़्यादा अच्छी बनेगी। जितने छिलके हैं मैं सब, जितने भी मेरे पास ये है कार्डबोर्ड के पीसेस, मैं सारे इसमें डाल दूंगी। इसमें से मैं ये प्लास्टिक वाला ये जिसमें भी फिल्म किसी तरह की है, या फिर ये जिसमें वंडर टेप लगा हुआ है, ये सब हटा दूंगी, ये सब नहीं डालूंगी। साफ जो कार्डबोर्ड के साफ पीसेस हैं सिर्फ वही मैंने इसमें डाले थे। थोड़े से मेरे को लग रहा है कार्डबोर्ड कम है तो थोड़े से मैं नारियल के छिलके और इसी में डाल दूंगी, इससे समय के साथ गल भी जाएंगे और मेरा जो लीचेट वगैरह है वो सब भी सॉल्व कर लेंगे। थोड़ी सी मैं पत्ती भी सूखी डाल दूंगी इसमें। नीचे कम से कम 3-4 इंच की लेयर हो जाए इसमें। उसके बाद अगर आप सब्जी डालना शुरू करेंगे तो फिर सब्जियों के छिलके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद मैं अपनी सब्जियों के छिलके जो मेरे आटे हैं वो डालना शुरू करूँगी। जितने भी हैं मेरे सब सब्जियों के छिलके मैं इसमें डालती जा रही हूँ, और जब मेरे को लगेगा कि एक लेयर काफ़ी हो गई है, 1 इंच की लेयर हो जाए इसमें, तो फिर मैं दोबारा इसमें ये एक लेयर के लायक ही इसमें है। डालकर मैं इसको चारों तरफ फैला दूंगी कि हर तरफ ये इवन हो जाए। इसके बाद मैं दोबारा इसमें पत्तियां डालूंगी। जितना वॉल्यूम मैंने छिलके पर लिया है उससे 3 टाइम्स वॉल्यूम मैं इसमें लेयर सूखी पत्तियों की लगाऊंगी। इस तरह से एक ब्राउन लेयर और एक ग्रीन लेयर इसमें डालते जाएंगे, जिससे कि अच्छे से ये मेरी कंपोस्ट का बैलेंस सही रहे। ब्राउन लेयर में हम बहुत सारी चीज़ें डालेंगे, मैं एक एक करके जैसे रोज डालूंगी तो मैं आपको दिखाते जाऊंगी। वैसे हम एक ब्राउन लेयर डालेंगे और एक ग्रीन लेयर। अभी मैंने जैसे इसमें ब्राउन लेयर डाल दी है सूखे पत्तों की। उसके बाद मैं दोबारा डालने के लिए इसमें वुड शेविंग्स डाल सकती हूँ, ऐश डाल सकती हूँ, कोकोपीट डाल सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ें डाल सकती हूँ। कुछ भी ड्राई मटेरियल इसमें डाल सकती हूँ। एक लेयर पतली मिट्टी की भी डाल सकती हूँ, जिससे कि उसमें बहुत सारे जर्म्स जो होते हैं वो इसको एक्टिवेट करेंगे। और टाइम टू टाइम इसमें हम बहुत सारा और सब डाल सकते हैं, जैसे दही का पानी डाल सकते हैं, एंजाइम डाल सकते हैं, गोबर घोल के वो डाल सकते हैं, जिससे एक्टिवेट होगा। आज के लिए इतना ही, फिर दोबारा लेकिन पॉलीगैमी तो एक इशू है, बहुविवाह तो एक इशू है। ये सारी चीजें तो सामाजिक कुरीतियां हैं, और ये तो किसी भी महिला का अधिकार छीनती है। इसके अलावा हलाला है। इसके अलावा हलाला आई फील अभी आपने जो ये देखा उससे काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि हमें कैसे इसको इस्तेमाल करना है। जो कंपोस्टिंग में सबसे ज़्यादा मायने रखती है चीज़ वो कि अंदर आपका
उसका ड्राई ना हो बहुत ज़्यादा, उसका टेम्परेचर अंदर का ठीक होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं होना चाहिए, उसका मॉइस्चर लेवल ठीक रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने ये एक बार समझ लिया कि उसका मॉइस्चर लेवल ठीक कैसे रखना है, तब कंपोस्ट बनाना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अब कंपोस्ट का आपने ये तो समझिए, सब मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे क्या करना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि उसको आपको रखना कहाँ है। जैसे अभी बारिश का सीज़न है, आपका अगर खुले में रखा हुआ है तो फिर आप उसको एक प्लास्टिक की शीट डाल दीजिए उसके ऊपर, कि उसके ऊपर बारिश का पानी ना पड़े। सर्दियों में अगर आप उसको धूप में रखते हैं तभी भी ठीक है, और गर्मियों में आप उसको धूप से बचाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। सेमी शेड जगह उसके लिए हरदम ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आपके पास ऐसा कोई एक कोना है जहाँ पर उसमें डायरेक्ट बहुत ज़्यादा धूप नहीं पड़ती, तो वो सबसे उसके लिए आइडियल प्लेस है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो नहीं आपका धूप में है तो प्रॉब्लम है, अगर छाया में तो प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें टाइम हो सकता है कम या ज़्यादा लगे, पर आपका तैयार वो हो जाएगा। बस बारिश में आपको ज़रूर उसको पानी से बचाना है। अगर वो आपका एनारोबिक है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो हर तरफ से एयर टाइट है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर कुछ अगर ऐसा है कि अगर वो अर्दन पॉट में है तो आप उसको कवर कर दीजिए। अब इतने सारे जो मैं कंपोस्टिंग के लेक्चर्स लेती हूँ तो मेरे को बहुत सारे लोगों से ये एक्सक्यूजेस मिलते हैं कि हम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत स्मेल आती है। अगर आपका उसके अंदर का रेशियो ठीक होगा कार्बन और नाइट्रोजन का, तो आपका स्मेल का कोई बहुत ज़्यादा चांस नहीं रहता। और कितनी देर आपको डालने में मुश्किल से 2 मिनट लगती है, उतनी देर अगर थोड़ी स्मेल आती है तभी भी हम आई थिंक टॉलरेट कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये रीज़न होता है कंपोस्ट नहीं करने का कि भाई बहुत डिस्गस्टिंग लगता है हमें उसके अंदर का। तो जब आप डाल रहे होते हैं तो आप नीचे का मत बहुत देखिए, आप अपना सामान डालिए, उसके ऊपर एक ड्राई लेयर डालिए और आपका काम खत्म है। उसके बाद आपको उसको देखना नहीं है। तो इतना ज़्यादा नहीं है, जो हम कूड़ा बाहर फेंकते हैं उसमें जितना गंदगी बाहर दिखाई देती है, उससे अच्छा है कि हम उसको अपने घर पे ही थोड़ा सा टॉलरेट कर लें। उसमें ये होता है क्रीपी फीलिंग आती है, फिल्दी फीलिंग आती है। तो ये सब अगर आप ठीक तरीके से, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा लगता है कि आप ग्रीन वेस्ट डालते हुए आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आप ग्लव्स यूज़ करके करिए, फिर कोई आपको इतना बुरा नहीं लगेगा। कुछ लोगों को स्पेस कंस्ट्रेन लगता है कि हमारे पास जगह नहीं है, पर आजकल जो ये बिन्स आ गए हैं बड़े अच्छे हैं। आपने अर्दन खंबा देखा, वो भी बहुत अच्छा है, और जो प्लास्टिक वाले भी हैं स्टैकिंग वाले, वो बहुत कम जगह लेते हैं और आप काफ़ी दिनों का उसमें ग्रीन वेस्ट कंपोस्ट का सामान उसमें चला जाता है। एक सबसे बड़ा जो जनरल एक्सक्यूज रहता है कि हमारे पास समय नहीं है, हम कैसे करें कंपोस्टिंग। अभी जो आपने क्लिपिंग देखी है उसमें सिर्फ 3 या 3.5 मिनट का क्लिपिंग है वो, उसमें मैंने समझाते हुए एक लेयर डाल दी है। एक दिन का कूड़ा डालने में 2 से 4 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता। आपने बस सेग्रीगेट करके अगर उसको रखा हुआ है तो डालने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, और अगर आपके किचन में ही है वो कंटेनर तब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम घर में वो कंपोस्ट करेंगे तो बहुत सारे इंसेक्ट्स हो जाएंगे, मच्छर मक्खियाँ आ जाएंगी। अगर आपने उसका मुंह बंद करके रखा है तो उसमें कुछ भी नहीं होगा। अगर आप अर्दन पॉट में भी कर रहे हैं तो आप या तो उस पर ढक्कन रखिए अर्दन वाला ही, अगर ढक्कन नहीं है तो आप किसी भी मसलिन क्लॉथ से उसका मुंह बांध दीजिए, तो उसमें एरिएशन भी होती रहेगी और मक्खी मच्छर भी बाहर नहीं आएगा। इसके अलावा कई लोगों को लगता है कि अगर हम कंपोस्ट बना रहे हैं तो उसको हर हफ्ते शफल करना पड़ेगा। पहले मैं भी करती थी और मेरे को बिलीव मी, मेरे को भी बहुत उसको करने में एट टाइम्स अनईजी लगता था। पर धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि अगर मैं उसको टर्न नहीं भी करती हूँ, भरने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ 1 महीने, तो उस प्रोसीजर में उसमें जो जर्म्स होते हैं वो अपने काम करते रहते हैं, और मैं उसको नहीं भी टर्न करती हूँ बार बार तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मे भी हफ्ते 10 दिन का फर्क पड़ेगा उसको कंपोस्ट होने में। आप उसको किसी रेकर से रेक कर सकते हैं, या मन लगे तो ग्लव्स पहन के उसको थोड़ा सा एक बार शफल कर दीजिए, पर पूरा मटका आप टर्न करके उसको दोबारा भरने की अब मैंने वो काम करना बंद कर दिया है। कोई मेरे को ज़्यादा मतलब एडवांटेज नहीं लगता अब उसका। कई लोगों को लगता है कि हमारे घर में डॉग है तो वो सब बिखेर देगा या उसके साथ बहुत प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप डॉग के साथ अपना गार्डन मैनेज कर सकते हैं तो एक कंपोस्ट बिन भी आई एम श्योर आप उसको ट्रेन कर पाएंगे कि आपको कंपोस्ट बिन ना छेड़े वो। एक
बड़ी अजीब सी एक लोगों की एक्सक्यूज होते हैं कि हमारा स्टाफ नहीं करता। हमारा स्टाफ को हमने बहुत बोला कि भैया तुम कंपोस्टिंग के लिए अलग करो, पर वो नहीं करता। तो थोड़ी सी आप पहल करिए, उनको थोड़ा सा एग्जाम्पल सेट करिए, 2-4 दिन करके दिखाइए, उनको मॉनिटर करिए, धीरे धीरे वो ट्रेन हो जाएंगे। हैव लिटिल पेशेंस एंड बी गुड विद देम, दे विल स्टार्ट डूइंग इट। उसके अंदर इंसेक्ट होते हैं, कई लोग बोलते हैं जब हम उसको देखते हैं उसमें छोटे छोटे कीड़े क्रॉल कर रहे होते हैं और वो हमें बहुत खराब लगते हैं। तो जो वो उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े होते हैं, दे आर ओनली मेकिंग और कंपोस्ट। हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ उसको एक फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम सिर्फ उसको डाल रहे हैं उसमें लेयर्स। जो काम कर रहे हैं आपका खाद बनाने का, वो तो वो वर्म्स ही कर रहे हैं, इसलिए उनसे मत घबराइए। दे आर आवर फ्रेंड्स, वो ही हमारे लिए कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी रहता है कि आई एम टू ओल्ड फॉर इट, अब मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, अब इस उम्र में क्या करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। शायद हम लोग एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं आने वाले जनरेशन के सामने कि हमें अपने घर में कंपोस्ट करना चाहिए। मैं अपने साथ अपने ग्रैंडसन को रखती हूँ, तो वो भी ये सब सीख गया है, अपने स्कूल में भी बताता है कि हम लोग घर में कंपोस्टिंग करते हैं। आप अभी से उनको अपने साथ रखेंगे, उनको सिखाएंगे। अब हम जिस एज में है, हम आने वाली पीढ़ी को सिखा सकते हैं। वी कैन सेट एन एग्जाम्पल फॉर देम, उनको ट्रेन कर सकते हैं कि उनको आगे चलने में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना लगे। तो हमारे मन में एक इच्छा होनी चाहिए। अगर हमने सोच लिया कि हमें कंपोस्ट करना है, तो कोई भी हमें उससे रोक नहीं सकता। अगर एक बार में हम सक्सेसफुल नहीं होंगे, तो दूसरी बार में हो जाएंगे। वी शुड कीप ऑन ट्राइंग, शुड नॉट गिव अप कि हमें ये इश्यूज है इसलिए हम नहीं करेंगे। हमें करना ही करना है। हमें अपने सोसाइटी के लिए, हमने आने वाले जनरेशन के लिए कंपोस्टिंग करनी ही है। तो आई से कि सब लोग को करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब इसका रिजल्ट मिलता है तैयार होकर, तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। उससे पेड़ पौधे बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब ये एक छोटा सा वीडियो और दिखा रही हूँ मैं, इसमें आप देखिए मैं छानने वाली हूँ। तो कैसे तैयार होगा। क्वेश्चंस होते हैं कि कैसे पता चले कंपोस्ट तैयार हो गया है क्या। तो देखिए ये कंपोस्ट है, सब कुछ गल गया है, कुछ भी पार्ट आपको ऐसा उसमें दिख नहीं रहा है कि कोई चीज साबित है। फल सब्जी या पत्ते के थोड़े छिलके रहते हैं, नारियल के छिलके थोड़े रहते हैं, बाकी सब चीज गल जाती है। तो जब आप अंदर हाथ डालें मटकी में और खाद आपको गर्म न लगे, अंदर आपको गर्म फील ना हो, देन दिस इज इंडिकेशन कि आपकी खाद तैयार हो गई है। और उसमें कुछ फूड पार्टिकल्स आप ऐसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए कि ये इसमें संतरा है, केला है, कोई चीज का, वो सब न हो। पत्तियों के कई बार रह जाते हैं, पत्तियां साबित दिखती हैं। तो पत्तियां साबित अगर दिखती भी हैं तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मतलब आपका तैयार है। पत्तियां जो उसको पोषण देना होता है खाद को, वो दे चुकी होती हैं। आप जरूरी नहीं है कि खाद छाने भी, आप बिना छाने भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप छान रहे हैं तो भी वो कोई उसमें गलत नहीं है, दोनों तरीके से ही है। इट इज वेरी पर्सनल चॉइस। आप इसको छान कर अगर कर रहे हैं तो छना हुआ पार्ट आप पौधों में डाल सकते हैं, और ऊपर वाला पार्ट मतलब पॉट प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। और जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको आप मल्च के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि छनने के बाद ऊपर से बचता है। अब ये जब भी मैं कुछ भी कर रही हूँ तो पूरा क्रम्बल हो रहा है, कुछ भी ऐसा साबित हाथ में नहीं आ रहा। तो ये खाद आपकी तैयार है। अब इसको हम छान लेंगे। इतने दिन में इतनी बड़ी तैयार हुई, इतना तैयार हुआ है? मैंने कहा कि कितना टाइम लगा है? अगर आप सीड प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं तब तो आपको डेफिनेटली छनी हुई खाद ही यूज करनी चाहिए, और अदरवाइज आप साबित भी मतलब पूरी बिना छने हुए भी यूज कर सकते हैं। और ये ऊपर वाला मैं वापस जब तैयार करती हूँ अपनी दूसरी मटकी, तो उसमें ड्राई वेस्ट के जैसे इसकी भी एक लेयर डाल देती हूँ। इससे दो फायदे होते हैं, ड्राई वेस्ट की जैसे भी यूज हो जाएगी, और जैसे आप दही में जामन यूज करते हैं, जब हम ये डालते हैं तो हमारी कंपोस्टिंग थोड़ी फास्ट हो जाती है। पहले मैं कंपोस्ट एक दो बार पलटती थी, पूरा करती थी, आजकल मैं नहीं करती। फिर भी 1.5-2 महीने में कंपोस्ट तैयार हो जाती है गर्मी में। ये मेरा मटका भरे हुए करीब 2 महीने हो गए हैं, और अब मैंने इसको निकाला है। तो आप देखिए काफी तैयार है सब। कोई चीज जो आपको लगे कि
अब पत्थर आ गया, ईंट आ गया, कई बार पत्तों के साथ कुछ कुछ आ जाता है, उसको आप हटा दीजिए। लेयर्स आपको पता ही है कैसे बनानी है, उस ढंग से आप लेयर्स बनाकर और इसको आप तैयार कर सकते हो। अब ये मेरा ऊपर का पार्ट है और मैं आपको छनी हुई खाद भी दिखाती हूँ। ये मेरी छनी हुई खाद है। ये बिल्कुल आप अपने जब पॉट मिक्स बनाए उसमें बहुत आराम से यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। तो अभी आपने जैसे किसी ने पूछा कितनी देर लगती है, इट डिपेंड्स ऑन दिस सीजन, कौन से सीजन में आप बना रहे हैं। गर्मियों में तकरीबन 2 महीने में तैयार हो जाती है, सर्दियों में 3 महीने भी लगते हैं। 3 महीने में बाय एंड लार्ज आपकी खाद तैयार हो जाती है। अब जैसा कि सभी को पता है कि गोल्डन आवर्स हैं हमारी, ये सब चीज़ों को रिड्यूस करिए आप, जो भी कूड़ा आप जितना हो सकता है अपने एंड पे रिड्यूस करिए। चीज़ों को अगर हम बार बार रीयूज़ करेंगे तो हमारी चीज़ें अपने आप, कूड़ा हमारे घर से कम निकलेगा। हमारी भारतीय संस्कृति में वैसे भी है कि चीज़ों को हम रीयूज़ करते हैं, कोई चीज़ जल्दी से हम फेंकते नहीं हैं। चीज़ों को रिसाइकिल करने की आदत डालिए। अगर रिसाइकिल कर लेते हैं अपनी चीज़ों को तो बहुत सारा कूड़ा बच जाता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हमें नहीं लेना, जैसे आज आपने मीनाक्षी जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हमें कंपोस्टिंग का रखना है एक सेशन, तो ऐसे ही धीरे धीरे हमारा वातावरण सुधरेगा और हम एक अच्छे वातावरण की तरफ प्रोग्रेस कर सकते हैं। गलत चीज़ों के लिए रिफ्यूज़ करने की आदत डालिए। जो भी वन टाइम यूज़ प्लास्टिक है या थर्मोकोल है, इन सबको कम करने की आदत डालिए कि हमें अगर पार्टी है तो हमें ज़रूरी नहीं है डिस्पोजेबल प्लेट्स यूज़ करनी है, या यहाँ तक मैं कहती हूँ कि आप टिश्यू पेपर्स भी यूज़ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि उस टिश्यू पेपर भी हमारे क्या पेड़ कट रहे हैं तो हमारे टिश्यू पेपर्स बन रहे हैं। हम पहले क्लॉथ नैपकिन्स यूज़ करते थे, वो भी हम दोबारा वापस हम उनको रिवाइव करना चाहिए। हमें रिफ्यूज़ करना चाहिए वन टाइम यूज़ एंड थ्रो चीज़ों के लिए। जितना हो सके अपना सामान अपनी तरह करें, बाज़ार जाएं तो प्लास्टिक के थैले न लें, अपना बैग लेके जाएं। ये सब अगर हम करने लग जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों का हम कूड़े से बचा सकेंगे अपने एनवायरनमेंट को। तो ये जो 5 गोल्डन आवर्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। अगर हम इनको थोड़ा थोड़ा भी फॉलो करने की आदत डालेंगे तो वी विल सी अ बेटर फ्यूचर। और जैसा कि सभी जानते हैं, जो जैसा हम करेंगे वैसे ही हमें रिटर्न मिलेगा। तो वी शुड डू आवर बेस्ट। जब मैंने फर्स्ट टाइम एक होम गार्डनिंग कोर्स किया था आर्ट ऑफ लिविंग का, तब मैंने इस कंपोस्टिंग सीखी थी और उस टाइम मेरे को लगा कि हाँ, कम से कम ये तो मैं कर ही सकती हूँ। अगर मैं पूरा कोर्स फॉलो नहीं कर पाऊंगी तो एटलीस्ट मैं एंजाइम बना पाऊंगी और कंपोस्टिंग कर पाऊंगी, जिससे मैं अपने घर का ग्रीन वेस्ट बाहर नहीं जाने दूंगी। एंड बिलीव मी, सिंस 7 years मेरे घर से कोई ग्रीन वेस्ट बाहर नहीं जाता है। बहुत कम कूड़ा हमारा निकलता है, क्योंकि तकरीबन सभी कुछ हम रिसाइकिल कर पाते हैं। हम सभी लोग न्यूज़पेपर देते हैं कबाड़ी को, जो घर की अनवांटेड चीज़ होती है वो देते हैं। बचता क्या है? ग्रीन वेस्ट ही, जो बाकी चीज़ों को खराब करता है। तो डू योर बिट करके बहुत अच्छा लगता है। बहुत एक अंदर से एक खुशी होती है कि आई हैव डन माई बिट। आप लोग भी करिए, आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब मैंने जितना जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं विनीता हूँ। मैं एक्चुअली रिसाइकिल करती हूँ ग्रीन वेस्ट का, मैंने खाद बनाया है। तो मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो आपने बोला कि न्यूज़पेपर डाल सकते हैं, तो उसकी जो प्रिंट है वो हानिकारक नहीं है क्या? न्यूज़पेपर शुड बी द लास्ट ऑप्शन। अगर आपके पास ब्राउन पेपर है या कोई कार्डबोर्ड के पीसेस है वो डाल सकते हैं। अच्छा, वो बेटर ऑप्शन है। हाँ, न्यूज़पेपर आप लास्ट रिसोर्ट की जैसे रखिए। और देखिए, जो हम फल सब्जी के छिलके डाल रहे हैं वो भी सब ऑर्गेनिक तो नहीं है ना, उसमें भी कुछ ना कुछ केमिकल तो रहता है। वो भी तो हम रिसाइकिल कर ही रहे हैं। अगर आप 100% ऑर्गेनिक ही खा रहे हैं, फल सब्जी के छिलके भी आपके 100% ऑर्गेनिक है, तो आप न्यूज़पेपर अवॉइड करिए।
पर अगर आप कभी कभी ऑर्गेनिक और नॉर्मल भी यूज कर रहे हैं पेस्टिसाइड वाली, तो ब्राउन न्यूज़पेपर भी यूज कर सकते हैं, बट कीप इट एज अ लास्ट रिजॉर्ट, क्योंकि आजकल हमारे पास बहुत ब्राउन पेपर्स और कार्डबोर्ड होते हैं, तो वो भी काम कर देता है। उस टाइम यूज कर लेना चाहिए जब लगे कि अंदर का उस टाइम आप उसको न्यूज़पेपर यूज कर सकते हैं। उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। आजकल इंक भी बोलते हैं केमिकल फ्री आ गई है, बट स्टिल अगर आप अवॉइड कर सकते हैं देन इज अ बेटर ऑप्शन। एनी अदर क्वेश्चन? ये जो आपने बताया कि वो जो फर्स्ट लेयर ड्राई लेयर, उसके बाद ग्रीन लेयर, देन अगेन ड्राई लेयर, और फिर वो वाटर उसके बाद डालना है। कम से कम आपने 3 लेयर ग्रीन डाल दिया, आपका जो कंटेनर है हाफ फुल हो गया, उसके बाद आप उसमें कुछ वाटर स्प्रिंकल करिए किसी भी तरह का। अगर पहले ही करने लग जाएंगे तो वो नीचे आ जाएगा बह के। तो कम से कम आधा आपका कंटेनर भरने दीजिए, उसके बाद आप डालना शुरू करिए। इसमें थोड़ा मिट्टी भी डालनी है? मिट्टी आप हर लेयर के साथ थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। टॉप लेयर जब आप बंद करते हैं मटका, तब अच्छी एक 2-3 इंच की मिट्टी की लेयर डाल के उसको बंद कर दीजिए, तो वो अपनी मतलब एक सील टाइप का हो जाएगा। धीरे धीरे वो दब जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं दबेगा। जब आपका एक मटका पूरा भर के आप छोड़ेंगे तो थोड़े दिन बाद आप देखेंगे कि वो दबकर आधा या 3/4 तो हो ही जाता है, डिपेंडिंग आपने कितने अच्छे से उसको प्रेस किया है। तो कई बार जैसे हम 2 मटके भी इकट्ठे करके एक में कर देते हैं, या 3 तो 2 में बहुत आराम से एडजस्ट हो जाते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन योर दिस थिंग कि आपने उसको कितना टाइटली पैक किया। अगर आपने बहुत लूज डाला है तो बिल्कुल आधा हो जाएगा एक हफ्ते 10 दिन में, तो आप उसको दूसरे मटके में डाल सकते हैं। पर एक मटका जब आपको लगे आधा हो गया है तो उसमें दोबारा फ्रेश लीव्स डालना मत शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि फिर वो प्रोसेस वहीं से शुरू होगा। आपने एक मटका भरने के बाद दूसरा मटका शुरू करिए, जब वो हाफ डन हो जाए, वो भी जब आधा हो जाए, तब उन दोनों को इकट्ठा कर दीजिए। पर उसके ऊपर से दोबारा फ्रेश वाला छिलके मत डालना शुरू करिएगा। थैंक यू, थैंक यू। अगर हम गार्डन में गड्ढा खोद के और फिर उसमें कंपोस्ट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें यही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है? सेम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। आप चाहें तो नीचे एक बहुत अच्छी सी फिल्म प्लास्टिक की लगा सकते हैं, जिससे जो आपका जो उसका नरिशमेंट है वो नीचे ज़मीन में ना जाए, या बहुत अच्छे से आप उसमें ड्राई लीव्स की मोटी लेयर लगा दीजिए, नारियल के छिलके लगा दीजिए, सो यू कैन डिमार्क इट कि हाँ यहाँ तक आपकी खाद तैयार हुई है। और ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कोई आपका डॉग या उसको आके छेड़े ना। आपका अगर पर्सनल एरिया में है, there's no dog in the house, but उसको फिर कवर पानी से कैसे बचा के रखेंगे? उसको आपको ऊपर से भी प्लास्टिक शीट लगानी पड़ेगी। Okay. बारिश के सीजन में थोड़ा तंग करता है, तो आप उसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपको उसके अंदर पानी ना जाए। Right. और आप उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम मैंने जो फेस की थी, मैंने 1-2 बार अपने घर में बनाया था, चूहे आने लग जाते हैं। Okay. तो ये थोड़ा सा मेरे को इशू लगा था, तो इसके बाद फिर मैंने बंद कर दिया था, फिर मैंने नहीं बनाया। Thank you. Thank you. Ma'am, I have one question. This is Anshuman. आपने जितना क्वांटिटी एक उसमें डाला था एक अर्थन वेसल में, उस गिवन द अमाउंट ऑफ आउटपुट फ्रॉम आवर हाउस, मुझे लगता है कि ऐसे तो 20 रखने पड़ेंगे अगर 1.5 महीना 2 महीना। आपके पास उतने हैं या आपका मतलब? मेरे पास 6-7 मटके होते हैं एट अ टाइम, तो जब 2 इकट्ठे करके मैं एक कर लेती हूँ, तब तक मतलब 7 मटके से मेरा मैनेज हो जाता है। 6 मटके ऑलवेज रिजर्व में रहते हैं, 7वां मटका मेरा रनिंग में रहता है। तो जब तक मेरा 7वां भी भरता है, तब तक मेरा एक मटका खाली हो जाता है। इंदु जी, यहाँ पे आई लास्ट विवेक टू शेयर फोटोग्राफ फ्रॉम पूनम मेहराज टेरेस, जहाँ पे उन्होंने कंपोस्टिंग करी है। इनके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, रेडीमेड पिक्टोरियल आंसर they'll get. विवेक, कैन यू शेयर दैट फोटोग्राफ प्लीज? Yes, sure. डिपेंड ऑन द साइज ऑफ योर फैमिली, कितना ज्यादा आपके घर से वेस्ट निकलता है और आपका कंटेनर का साइज क्या है। And this is Mrs. Mehra's terrace. तो उन्होंने हमारे साथ ये मटका अभियान शुरू किया था, which she finished. ब्लैक प्लास्टिक से जो कवर्ड है, ये पहले से उन्होंने करा, and now she is doing it in these blue bins which are there on the right side.
So it depends on how keen, because she got very good results from home compost in last season. अब she is doing it, कहते हैं पूरे जैसे इंदु जी ने कहा जी जान लगा के she is concentrating on getting home compost, because what she realized is कि once you do your own home composting, you know that the compost that is coming is pure, because that is made of all that you've eaten yourself. इसमें कोई मिलावट नहीं है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है. So that's the best way of consuming the purest form of compost that you can have. इस तरह के बिन्स जब आप यूज करें तो उसमें होल करना ना भूलें. बॉटम में होल होना बहुत जरूरी है. ऐसे बिन्स अमेज़न पे मिलते हैं जिनमें एक आउटलेट भी होता है वाटर के लिए. सेक्टर 10 में बहुत आराम से मिलते हैं. सेक्टर 9 में दिस वन लेन जहाँ पर कि आपको पुरानी प्लास्टिक की बकेट्स और इस तरह के बिन्स मिलते हैं. दे आर वेरी इजीली अवेलेबल. तो क्या आप आराम कर सकते हैं. इंदु जी वो पूछ रहे हो जिनके आगे वो टैप बना है ना टू पुल आउट द लीचेट, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं. उसमें तो छेद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें आउटलेट है आपका. पर इस तरह के बिन्स आपको ब्लू वाले दिख रहे हैं, उसमें आपको होल्ड करने की जरूरत होती है. जिसमें आपका आउटलेट है लीचेट के लिए, उसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. दे आर रेडी टू यूज. राइट. जो हम मार्केट से खाद लेके आते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे हैं तो खाद तो सबको चाहिए ही. बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि खाद पक्की है नहीं पक्की है, पता नहीं कैसी है. अगर आप अपने घर में ही बना रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली पता है आपने कैसी खाद तैयार करी है. आपकी ये खाद जो है इट्स लाइक अ मल्टी विटामिन कैप्सूल. जो गोबर की खाद लाएंगे उसमें तो नाइट्रोजन ही ज्यादा है. इसमें आपका सब कुछ है. इसमें नाइट्रोजन भी है, पोटाश भी है, ह्यूमिक एसिड भी है, सब कुछ, क्योंकि आपने सब तरह के फल सब्जी के छिलके डाले. तो इससे बेटर खाद कुछ नहीं हो सकती अपने घरों के गमलों के लिए. That's why it's been termed black gold. That's why it's black gold. Yes. Truth. Any more questions? इंदु जी ये मुझे पूछना था कि प्याज और लहसुन जो होता है, इनके छिलके इसमें डाले जा सकते हैं या वो ज्यादा नहीं डालने चाहिए कि क्यों माइक्रोब्स उसकी स्मेल से नहीं ज्यादा. और दूसरी बात, आप माइक्रोब्स जो होते हैं इसमें आई बिलीव कंपोस्टिंग करने के बाद इसी में दे सॉर्ट ऑफ लिव देयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड उसी में फिर खत्म हो जाते हैं. हर जो भी माइक्रोब्स होते हैं, जो भी वर्म्स आपको दिखाई देते हैं, उनका 1 महीने से मतलब 30 से 40 दिन का लाइफ स्पैन होता है. तो जब तक आपकी खाद तैयार होती है वो अपना काम करके वो उसी में खत्म हो जाते हैं. तो उससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए. अगर आपकी खाद तैयार है और फिर भी आपका जब आपको कीड़े दिख रहे हैं तो मतलब आपकी खाद तैयार नहीं है. अगर उसमें कुछ भी वर्म्स आपके हैं अभी जो कि क्रॉल कर रहे हैं एंड यू कैन सी देम विदाउट एनी माइक्रोस्कोप, तो वो आपकी खाद तैयार नहीं हुई है. अभी उसमें काम करना बचता है उनको. अगर उनका काम खत्म हो जाएगा तो वो भी खत्म हो जाएगी. जब हमने सीखा था ये कि कैसे बनाना है तो हमें भी बोला गया था प्याज लहसुन के छिलके न डालो, पर चूंकि हमारे घर में यूज होते हैं तो मैंने कहा कि अब मैं इनको कहाँ अलग से फेंकूं. तो आजकल तो मैं उसको भी डाल देती हूँ और मेरे को कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है या मेरी खाद अब अच्छी नहीं बन रही. So Meenakshi ji, I think Indu ji is done with the session. Okay. So, thank you Indu ji. Floriculture Society, we are able to spread some more awareness. We look forward to actually more such sessions. So can I ask Mrs. Sonia Sareen now? Thank you Indu ji for such a informative session. आपने हमको बहुत अच्छी information दी and I hope we all will take benefit from this. और कुछ चीजें आपने जो हमें डिटेल में समझाई वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी. लाइक हम लोग एक आपने जो डिस्कशन किया कि जो हम लोग छोटे छोटे से इश्यूज सोचते हैं कि इसकी वजह से हम नहीं कर सकते. लाइक यू सेड कि जी कुत्ता हमारे घर में पेट है तो वो उससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है या हमारा सर्वेंट नहीं करेगा. तो ये सारी छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो एक हिंड्रेंस लगता है कि नहीं हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा. तो आपने उनको इतना डिटेल में और सारे जो आपने वीडियोस दिखाए
वी आर वेरी थैंकफुल फ्रॉम RWA कि आपने हमें बहुत अच्छी चीज सिखाई और हम लोग उससे जरूर फायदा उठाएंगे। माय प्लेजर। आई होप आप लोग चालू करें इसको। एनी क्वेश्चंस आप लोग प्लीज कभी भी पूछ सकते हैं। आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर दैट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक्स अ लॉट। Thank you. Thank you. Thank you, nice Deepa session. ji, Manu ji, Hindu ji, Vivek ji, everyone, the whole FSN team. Thank you so much. Thank you. Thanks everyone for joining. Bye.